Hello student, welcome to your class 10th biology class, in which today we will continue our topic, that is the human digestive system. In last video we discussed about what is human digestive system, what is digestion, and what are the following parts that involve in the human digestive system. And today we discuss about the whole parts of the human digestive system. First of all, we revise our topic, that is the माउथ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अगेन वी रिवाइज इट फर्स्ट वन, देन वी विल कंटिन्यू अदर पार्ट्स फॉर द अदर पार्ट्स. माउथ, व्हेन वी टेक द फूड फ्रॉम द माउथ, then in mouth teeth and tongues are present, in which teeth cuts the food into the small pieces, and then salivary glands which are present on the tongue or in the cheeks or in the jaws secrete saliva that contain the important enzyme salivary amylase or ptyalin enzyme that break down carbohydrates that present in the food into the maltose. जो फूड के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जस्ट लाइक आपका स्टार्च है, सुक्रोज है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है माल्टोज में. कौन है? टाइलिन एंजाइम या स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम. उसके बाद फूड हमारा कहाँ आता है? इनटू द ईसोफेगस. ईसोफेगस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप. फूड पाइप भी हम इसको कहते हैं. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर. इट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. और इसके अंदर जो हमारी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेट इज़ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. जो ईसोफेगस की वॉल्स हैं उनके अंदर जो मसल्स होती हैं, उनके अंदर ये जो मूवमेंट हो रहा है आपका कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का, डेट इज़ नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके थ्रू ही जो फूड है वह हमारा मूव करता हुआ कहाँ जाता है? इनटू दी स्टमक. स्टमक में हमारा आ जाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टमक. स्टमक, एज यू से, इट इज़ द जे शेप्ड स्ट्रक्चर or it is a bag like muscular structure that has three parts. First one is the fundus, second is the cardiac, and third one is the pyloric region. This is the fundus, as you see, this one is the fundus region, this one is the cardiac region, and last one is the pyloric region. In cardiac region most of the digestion of food is occur. Now in stomach there are three liquids are present. First one is the mucus, second one is the HCl, and third one is the gastric juice, or we can say digestive juice. The stomach walls secretes mucus that protect the stomach from damage by the HCl. जो स्टमक की वॉल्स हैं वो म्यूकस क्यों सिक्रेट कर रही हैं? क्योंकि HCl क्या है? ये एक एसिड है, नेम इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो एसिड क्या कर सकता है? वो हमारी जो स्किन है या ऑर्गन्स है उनको डैमेज कर सकता है. तो हमारे स्टमक को HCl से डैमेज होने से बचाने के लिए ही जो उसकी स्टमक की वॉल्स हैं वो सिक्रेट करती हैं आपका म्यूकस को, और जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे स्टमक को. नाउ HCl, इसके अपने तीन फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट फंक्शन, इट किल्स द बैक्टीरियाज डेट आर प्रेजेंट इन द फूड. सेकेंड वन, इट प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम बिकॉज इट इज़ द एसिड. तो ये फूड को हमारे स्टमक को क्या दे रहा है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है. एंड थर्ड, in the presence of this acidic medium that is generated by the HCl, the enzyme pepsin break down protein that is present in our food into the peptones and protease. जो हमारे फूड में प्रोटीन होता है उसको जो पेप्सिन एंजाइम है वो HCl की प्रेजेंस में ही किस में तोड़ देता है? प्रोटीएज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है. उसके बाद जो गैस्ट्रिक जूस है, हम उसकी बात करें अगर, तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंजाइम को किस में चेंज कर देता है? एक्टिव पेप्सिन में चेंज कर देता है. तभी हमारा पेप्सिन एक्टिव होकर क्या करता है? प्रोटीन को फाइनली ब्रेक डाउन कर देता है. Now we discuss about the next organ, that is the liver. As you see in this figure, this is the liver that secrete the bile juice, and the bile juice store into the gallbladder. As you see here, this is the gallbladder in which bile juice is stored when it is made up by the liver in the enough quantity. Now liver, it has the weight 3 pounds approximately in human beings, and it is the reddish in color in structure.
And one thing that is important about the liver, that liver has the only organ that has the regeneration capacity. If we transplant the livers and we chemically injured or mechanically damaged our liver, then 25% of cells of the liver in 2 weeks regenerate itself. यानी अगर हमारा लीवर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, अगर हम अपनी सेल्स लीवर सेल्स किसी 25 सेल्स लीवर किसी आपके अदर जो ह्यूमन बींग है उसको दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो हमारी जो लीवर सेल्स हैं वो 2 वीक्स के अंदर अंदर जो एक न्यू लीवर है उसका फॉर्मेशन कर लेती हैं. सो लीवर सेल्स हैज़ द कैपेसिटी फॉर द रीजनरेशन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द pancreas. Pancreas, as you see here, it is a leaf like structure that is yellowish in color, this one, and it secrete the pancreatic juice. जो pancreas है वो pancreatic juice release करती है, through which the medium now becomes alkaline. अभी तक हमारा मीडियम स्टमक में कैसा था, एसिडिक, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हमारा मीडियम कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन, बिकॉज in some enzymes active in the alkaline medium. Now we discuss about the small intestine. As you see here, small intestine, it is 6 to 7.5 centimeter highly coiled structure in human beings. Human beings के अंदर इसकी लेंथ जो रहती है 6 to 7.5 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली रहती है. हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये, और इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू दी 3 parts. First one is the duodenum, second one is the jejunum, and third one is the ileum. These are the 3 parts of the small intestine. As you see, duodenum, it is the U-shaped structure. Just like here, it is the U-shaped structure in which most of the digestion of food is occur. In jejunum, there is no digestion of food is occur. In this region only absorption of the food is occur. In the walls of the small intestine, some finger-like projections are present. They are known as the villi. In earlier classes, you read about these structures which are known as the villi. Villi absorb the most important components from the food, just like glucose, just like fatty acid and glycerol and amino acids, and mix them with the blood, and then finally reach टू देयर डेस्टिनेशन. जैसे ग्लूकोज किसको चाहिए, हमारी मसल्स को चाहिए, क्योंकि हमारी मसल्स आए दिन क्या कर रही हैं, हैवी वर्कआउट करती हैं. उसके अलावा जो फैट है उसके अंदर से जो फैटी एसिड निकला है, ग्लिसरॉल है, वो किसको चाहिए, वो हमारी स्किन को चाहिए, ताकि हमारी स्किन कैसी हो सके, हमारी स्किन स्मूथ बन सके. जो आपका अमाइनो एसिड्स है वो किसको चाहिए, वो हमारी बोन्स को चाहिए, वो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को चाहिए, ताकि हमारा जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो बन सके, उसका फॉर्मेशन हो सके. तो इस तरीके से जो भी फूड में जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे ये 3, उनकी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट रहती है, ब्लड्स के थ्रू विलाइस उन सबको एब्जॉर्व कर लेती है फूड में से, और ब्लड के थ्रू उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचा देती है. नाउ विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो. In ileum, it is the last part of the small intestine that connected with the large intestine. आप देख रहे हैं इस फिगर में कि आपका जो इलियम है वो आपका किससे कनेक्टेड है, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, दिस वन. नाउ वी डिस्कस अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन. व्हाट इज़ द डिफरेंसेस कि वाई वी कॉल द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, while the length of the small intestine is much more than the लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, लेकिन हम फिर भी उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन वो मोटी है और उसकी लेंथ कम है, तो फिर हम उसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं, तो वही उसका मेन रीज़न है थिकनेस. द थिकनेस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ मच मोर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो इट इज़ कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो ह्यूमन में कितनी रहती है, 1.5 मीटर. आपका जो ह्यूमन्स है उसके अंदर उसकी लेंथ कितनी रहती है, 1.5 मीटर. देन इट ऑल्सो कंटेन दी 3 पार्ट्स. जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, एज यू सी हियर. फर्स्ट वन, that is the cecum, second one is the colon,
एंड थर्ड वन इज़ द रेक्टम। ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के। जो कोलोन है वो अगेन डिवाइडेड होता है आपका 4 पार्ट्स में। जो कोलोन है आपका, एज यू सी इन दिस फिगर, कोलोन, इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू दी 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन, एज यू सी हियर, फर्स्ट वन इज़ द असेंडिंग कोलोन, second one is the transverse colon, and third one is the descending colon, and this one is the sigmoid colon। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के आपके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द असेंडिंग कोलोन, जो ऊपर की तरफ जा रहा है पार्ट, जो आपका स्ट्रेट जा रहा है, डेट इज़ द ट्रांसवर्स कोलोन्स। जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज़ द आप डिसेंडिंग कोलोन। और जो आपका थोड़ा सा स्लाइटली मूव हो रहा है, डेट इज़ द सिग्मॉइड कोलोन। उसके बाद आता है देन रेक्टम एंड देन फाइनली एनस। सो एनस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, एंड थ्रू द एनस द अनडाइजेस्टेड or undesired food pass out from the body time to time. So finally these are the parts of human digestive system. All these things are provided to the notes that I given you in the after this video. So note down them and make this diagram also in your fair notebooks. In next video we discuss about the 5 steps of the human digestion and complete our human digestive system topic. So for today thank you so much, and घर पर रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच क्लास।